ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹਿ ਥੜਾ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਚੜ ਲੰਘੀਐ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਬੋਹਿਥ ਨੇ। ਬੋਹਿਥ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਚਰਨ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੌਣ ਆਪਣੀ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ
उस साधु दे मगर हो तुरिया। साधु सुबह सुबह इशनान करने वास्ते नदी ते जा रहा सी। साधु नूं कहंदा कि तुसीं मैनूं रोज़ टाल दिंदे, अज नहीं मैं जाना, अज मैनूं तुसीं उपदेश देवो, अज मैनूं राह दासी देवो। साधु ने कहा ठीक है, अज तैनूं दस ही देना है, मैं इशनान करन चलिया नदी ते, मेरे नाल चल, तू भी इशनान करी मेरे नाल, ते इशनान करदियां करदियां दस देऊँगा। उन्हें कहा इन्ना सौखा है? साधु ने कहा हाँ इन्ना ही सौखा है, इशनान करदियां करदियां दे देंगा उपदेश। चले गए, इशनान करने वास्ते नदी विच उतरे। साधु भी चंगा तकड़ा सी शरीर करके। जदों इशनान करन वास्ते नदी विच उतर गए, इशनान करन लग पे, तां उस नौजवान ने पानी विच नदी विच चुब्भी लाई। जिवें उन्हें टुब्बी लाई तां वो साधु उसने अपने हत्थां नाल भार पा के नौजवान नूं पानी दे विच धकेल दिता पूरी तरह, कि उन्होंने पूरी तरह विच जिवें किसी नूं मार देना होवे इस तरह उन्हें पूरी तरह उसनूं पानी विच धकेल दिता। वो हथ पैर मारदा है, वो बाहर निकलण दी कोशिश करदा है, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा। जदों उहदा बिल्कुल हुण कि आखिरी साह मनो बचिया होवे, जदों वो मरण कंढे पहुंच गया, साधु ने उन्होंने छड्ड दिता। उन्होंने छड्ड दिता ते वो बड़ी मुश्किल दे नाल नदी दे किनारे पहुंच सकिया। कंढे ते बह गया, लम्मा पै गया, औखे औखे साह लैंदा तेज तेज। जदों थोड़ा जिहा उस दी धड़कन ठीक हुई तां उसने कहा कि मैं सुनिया सी कि साधु कमले हुंदे ने, अज देख लिया। मैं सुनिया सी लोकी एवें तुहानूं कमले नहीं कहंदे, इहो जिहियां हरकतां करके कहंदे ने। साधु ने कहा असीं लोकां दी परवाह कदों करदे हां कि लोग सानूं कमले कहण जां सियाणे कहण, क्योंकि ना सानूं सियाणे कहाउण विच कोई दिलचस्पी है, ना सानूं कमले कहण लोग इस गल दा बुरा लगदा है। जो जिस दा दिल करदा कही जांदा है। पर तूं मैनूं हुण जवाब दे कुछ गल्लां दे। जदों तू पानी दे विच सी, मैं तेरे उपर चढ़िया होया सी, तू मर रहा सी, तां उस वक्त तेरे मन अंदर की ख्याल सी, तू की चाहुंदा सी, तेरी की इच्छा सी? उस नौजवान ने कहा कि उस वक्त सिर्फ इक्को ही ख्याल सी कि बस किसी तरह मैं पानी चों बाहर आ जावां ते मेरी जान बच जाए। बस मैनूं कोई दूसरा ख्याल है ही नहीं सी, मैनूं कोई दूसरा विचार ही नहीं सी। मैनूं तो यह लग रहा सी मेरी जान गई, मैं मर गया, बस एक बारी मैं बाहर निकल जावां, साह मिल जाए, मैनूं एक बारी हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, बस होर कुछ है ही नहीं सी। साधु ने कहा कि रब नूं मिलण दा आही ढंग है कि जिवें तुहानूं पानी दे विच, नदी दे विच डुबदियां नूं इक्को ही ख्याल आ रहा सी, क्योंकि बस बाहर निकल जावां, किसी तरह साह आ जाए, बस होर कोई इच्छा नहीं सी। बिल्कुल इस तरह ही जदों परमात्मा तो इलावा कुछ होर इच्छा होवे ही ना, फिर वो मिलता है, फिर उसकी प्राप्ति होंदी है। उस तो बिना नहीं, उस तो बिना नहीं मिलता। जदों डुबदे नूं दिल कोई होर दिसे ही ना, जदों डुब रहे होइए, पूरी तरह मर रहे होइए, उदों ही इक्को ही इच्छा है कि बस कोई हाथ फड़ के बाहर कढ़ लवे, कोई किनारे ते लै जाए पकड़ के, कोई मैनू जहाज़ विच चढ़ा लवे, बस फिर सतगुरु कहंदे पार लंघदा बंदा। इसलिए जदों तक अपने डुबण का एहसास नहीं हुंदा सानू, असीं डुबदे पए आ काम विच, क्रोध विच, लोभ विच, मोह विच, कि सानू एहसास हो रहा कि असीं डुब रहे हैं,
बिल्कुल भी नहीं। सानू लगता ही नहीं कि पैसे दे विच असीं उलझे हुए हैं, डुबदे जा रहे हैं माया विच। सानू लगता ही नहीं, सानू लगता ये तो नॉर्मल गल है, ये तो नॉर्मल है, कोई एडी गल नहीं है। इस करके साडे अंदर उस नूं मिलण दी चाह पैदा ही नहीं होंदी, साडे अंदर इच्छा ही नहीं पैदा होंदी। असीं लोग छोटियां छोटियां चीज़ां विच ऐसा उलझ गए हैं कि उस वाहिगुरू की तड़फ साडे अंदर उठदी नहीं है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे उस वाहिगुरू नूं जाण, उहदे चरण जहाज ने बोहित ने, बोहिथड़ा हर चरण मन चढ़ लंघी है। हे मन, उहदे विच सवार होके तू पार लंघ जाएगा, उहदे च सवार होके ही पार लंघ सकेगा। 8 पहर गुण गाए साधु संगी है। 8 पैर साधु दे संग, गुरु दे संग, वाहिगुरू दे गुण गा। 8 पैर, 8 पैर का मतलब 4 पैर दिन दे, 4 रात दे, कि 24 घंटे हर वेले हर साह नाल उस परमात्मा दे गुण गाउंदा रहो। साधु दे संग इसलिए क्या है, गुरु दे संग इसलिए क्या है, क्योंकि गुरु दे संग साडे मन अंदर थोड़ा डर रहिंदा है। गुरु दे साधु दे संग साडे मन विच थोड़ा खौफ रहिंदा है। इसलिए साडा मन उत्थे चंचलता ही नहीं करता बहुती, साडा मन बहुता इधर उधर दौड़दा नहीं फिर। इसलिए जदों असीं इकल्ले बैठे हाँ उदों सानू कोई डर नहीं किसी का, क्योंकि ना सामने गुरु है ना नाल संगत बैठी है, इकल्ले हाँ। मन इधर उधर दौड़दा भी रहे तो किहनूं पता लगना है, सानू खुद नूं नहीं पता चलता तो किसी नूं की पता लगना है। पर जदों गुरु की मौजूदगी विच बैठे हाँ, जदों संगत दे विच बैठे हाँ, तो उस वक्त एक मन विच भाव हुंदा है, गुरु की मौजूदगी का एहसास हुंदा है। इसलिए मन दौड़दा ते है पर घट, उन्ना नहीं। भावें थोड़ी देर बाद एहसास हो जाए कि मैं तो संगत विच बैठा, थोड़ी देर बाद चेता आ जाता है कि मैं तो गुरु दे दर बैठा। इसलिए गुरु दे संग, साधु दे संग उस वाहिगुरू नाल जुड़ना आसान हुंदा है, सौखा हुंदा है। इसलिए तो गुरु का बार बार जिक्र आया कि गुरु नाल जुड़, गुरु नाल जुड़। इस करके तुसीं घर बह के भी उसनूं सिमर सकते हो, घर बह के ही कथा सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो। लोग सुनते ही ने, तो सुनते ना सुनते एक बराबर ही देखे जाते हैं घरां विच बैठे। तो टीवी चलता रहिंदा है, दरबार साहब तो कीर्तन चलता रहिंदा है, कौन सुनता है? कोई नहीं, बस आवाज़ आ रही है, होर कुछ नहीं। मैं किसी के घर गया, उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने घर पाठ चल रहा सी, अखंड पाठ साहब की रिकॉर्डिंग है उन्होंने कोल, तो हर दिन सारा दिन उन्होंने घर पाठ चलता रहता है। तो असी घंटा बैठा, 2 घंटे बैठे, गल्लां बातां करते रहे, पाठ चली जा रहा पिछे। तो जदों वापस आए, उन्होंने घरों तुरे, तो उन्होंने भी किते जाना सी, तो मैं भी चल पिया, वो भी चल पाया। जदों निकले तो मैं उन्होंने कहा तुसीं वो बंद नहीं करना? वो कहते नहीं, असीं बंद नहीं करते। मैं कहा भी हुण पिछे सुन कौन रहा है? कहते सुनने वाला कोई भी नहीं, असीं सब लॉक ला के चले जावांगे। तो मैं कहा तुसीं लॉक ला के चले जाओगे, पिछे कौन सुनेगा जो पाठ चल रहा है? वो कहते कोई नहीं है, बस घर में चलता रहिंदा पाठ। बस जदों घर में आदमी हुंदा ना उदों सुनदा, जदों कोई नहीं हुंदा ना उदों सुनदा। वो दोनों हालतों में घर खाली हुई है।
ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਤੇ ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਬ, ਇੱਕ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਸੁਣਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਸੁਣਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਗਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀਐ। 8 ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ। ਹੇ ਗਾਫਲ, ਗਾਫਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋ ਰਿਹਾ? ਗਾਫਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਹਿਰਾ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ।
माया की नींद ही ऐसी प्रबल है, काम क्रोध की नींद ही ऐसी गहरी है। जदों काम की नींद होंदी है उदों कुछ दिखाई दिंदा है, कुछ सुनाई दिंदा है? नहीं। जदों असीं लोग नींद विच हुंदे आ उदों, जदों सुपना देख रहे होंदे आ उदों इंज ही लगदा है कि सुपना ही सच है, यही सच है, यही असलीयत है। जब तक नींद टुटे ना उदों तक सच ही समझते हैं। सतगुरु कहते नरपत एक सिंघासन सोया सुपने भया भिखारी, अष्टराज विचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। कि अपने आसन ते बैठा बैठा, तख्त ते बैठा बैठा सौ गया, अख लग गई, झपकी लगी, उन्नी क देर विच उहनूं सुपना आया कि वह सुपने विच भिखारी हो गया, राजे तो भिखारी बन गया, भिखारी बनया। जदों अख खुली तो ख्याल आया कि नहीं, मैं तो राजे का राजा ही हाँ, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़िया। पर दुखी होया। लोग रात को जिहड़ा सुपना देखते हैं उसनूं सवेरे सोच के दुखी होंदे ने कि रात सुपने विच मैं वेख्या कि फलानी घटना वापर गई, मैं सुपने च देखिया कि घाटा पै गया, उसनूं देख के लोग दुखी हो जाते हैं, जद कि वह झूठ सी, सुपना सी। वो सतगुरु कहते अष्टराज विचरत दुख पाया, सुपने विच ही राज विछड़ गया, राज चला गया, ये देख के दुखी होया। सो गत पई हमारी, वो गत होई साडी, साडी ये हालत बनी कि सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ चला गया सुपने विच, पर असीं रोई जांदे आ। सुपने नूं सच समझ के बैठ गए। सतगुरु कहते नींद विच सच लगता है सब कुछ, तो बंदा ये मूर्ख, ये गाफल आदमी उसे नूं सच समझ के पकड़ के बैठा होया है। काम विच क्रोध विच कुछ नहीं सुझदा। जदों आदमी नूं क्रोध आया हुंदा है उदों उसनूं कुछ दिखदा नहीं, कुछ सुनदा नहीं। जदों लोभ हुंदा है ना, लोभी आदमी नूं, तो लोभी आदमी नूं तुसीं उपदेश दिओ जिन्ना मर्जी कि भाई लालच चंगा नहीं, लोभी नूं सुनाई दिंदा है? बिल्कुल नहीं सुनदा। हंकारी बंदे नूं जिन्ना मर्जी समझावो वो सुनदा है? कदे भी नहीं। इसलिए सतगुरु समझाउंदे क्या सोवै नाम विसार गाफल गैलिया, हे गाफल बंदे, हे लापरवाह आदमी, तू क्यों नहीं समझदा? कित्ती इत दरियाए वंजन बहंदे आ। सतगुरु कहंदे वेख जरा, दरिया दा पानी लगातार वगदा है, इत्थे संसार दे विच माया दा बहन लगातार बह रहा है, तो तू उहदे विच बहंदा जा रहा है। असीं सब लगातार बहंदे जा रहे हैं उहदे पानी दे विच, काम क्रोध विच, लोभ मोह विच, ईर्षा निंदा नफरत औगणा विच, लगातार इस बहन विच बहंदे जा रहे हैं। अपने आप नूं उहदे हवाले कर दिता, नदी दे हवाले, कि वह जिथे लै जा रहे हो। काम बंदे नूं ले जा रहा है, बंदा चुपचाप उहदे वस पिया होया। सतगुरु कहंदे बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, कि ये नदी बहती जा रही, जिंदगी रूपी नदी जिहड़ी है इहदा बहन लगातार वगदा है, पर बंदा इहदे ते जरा भी नज़र नहीं मारदा, जरा भी ध्यान नहीं दिंदा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, कदे देखदा ही नहीं। जरा वेखे तो सही, जरा होश तो करे। सतगुरु कहंदे देखदा ही नहीं, होश ही नहीं करदा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, माया मोह बंधै नित पारत, माया दे मोह विच बंझिया होया, बज्झा होया, उलझिया होया उहदे विच। सतगुरु कहंदे बह रहा इस बहन विच, कित्ती इत दरियाए वंजन बहंदियां। सतगुरु कहंदे किन्नी दुनिया इस दरिया विच बह गई, सब उस दरिया विच बहंदे जा रहे हैं, काम विच, क्रोध विच, लोभ विच, मोह विच। इसे बहन विच तो बह रही सारी दुनिया। कोई वखरा करदा कुछ नज़र आउंदा तुहानूं?
कि कोई अलग कर रहा होवे, कुछ अलग करदा, कोई कुछ करदा नज़र नहीं आता। सब पैसा जोड़न वाले पासे लगे ने, सब धीआं पुत्तां नूं पालण संभालण उन्हां वाले पासे लगे हुए ने, सब माया हासिल करन लई, सब रुतबे अहुदे हासिल करन लई, मान वडियाई हासिल करन लई, काम वासनावां इन्हां विच ही सारी दुनिया लगी हुई है। इहदां तो वखरा कुछ करदा आदमी नज़र नहीं आउंदा। सतगुरु कहंदे बह रही सारी दुनिया इहदे विच ही, ते इहदे विच ही फिर डुੱਬ जांदे ने। इस बहण विच, इस बहण विच ही आदमी बह जांदा है। बोहे थड़ा हर चरण, सतगुरु कहंदे जे तू चाहुंदा है ना बचना, कि मैं डुੱਬਾਂ ना इस बहण विच, इस काम क्रोध विच, लोभ मोह विच, विषयां विकारां दे इस पानी विच, इस गहरे विच मैं किते भी डुੱਬਾਂ ना, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਢੰਗ है कि गुरु के चरणों का आसरा लै। बोहे थड़ा हर चरण, मन चढ़ लंघी है, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾ। आठ पहर गुण गाए साधु संगी है, ते अठे पैर उस परमात्मा दे गुण गा गुरु दे संग मिल के। अठे पैर उसनू सिमर रहाओ, भोगै भोग अनेक, बिन नाम है सुनिया। सतगुरु कहते बंदा बहुत भोग भोगदा है, चीज़ां दा भोग करदा है। जड़ियां भी चीज़ां असीं वरतदे हां उन्हां दे वरतण नूं भोगना कहंदे ने। ਅਸੀਂ कोई कपड़ा पहनते हैं, ਅਸੀਂ उस कपड़े का भोग करते हैं, कुछ खाते हैं उस चीज़ को भोगते हैं, कोई भी चीज़ हंडाउंदे हैं उसनूं भोगते हैं, गड्डी है उन्होंने भोगते हैं जदों उहदी सवारी करते हैं। संसार दीयां जिन्नियां भी वस्तुआं ने असीं उन्हां दा भोग कर रहे हैं, सब नूं भोग रहे हैं। सतगुरु कहंदे भोगै भोग अनेक, बंदा अनेकां भोग भोगदा है, अनेकां चीज़ां वरतदा है, उन्हां दा इस्तेमाल करदा है। बिन नाम है सुनिया, वाहिगुरू दे नाम तो बहीना, वाहिगुरू दे नाम तो खाली। उहदा नाम साडे अंदर नहीं है, सुन्या, उहदे नाम तो बिना साडा घर साडा हिरदा सुन्या पिया, खाली पिया। क्योंकि मन तां लगा होया रसां कसां विच। सतगुरु की कहंदे ने, गुरु नानक साहब कहंदे कि बंदा ऐसा रसां कसां विच उलझिया कि इन्ने रस इस शरीर नूं लगे ने कि वाहिगुरू दे नाम दा रस ਉਹਦੇ अंदर किथे। सतगुरु कहंदे इते रस शरीर के कै घट नाम निवास। शरीर दे रस इन्ने ने क्योंकि स्वाद ही इन्ने ने। बंदे नूं कदे किसी चीज़ का रस है, कदे किसी चीज़ का स्वाद है, किसी चीज़ का। वाहिगुरू दे नाम का रस तो है ही नहीं, उहदी बंदगी का रस तो है ही नहीं। इसलिए सतगुरु कहंदे इते रस शरीर के कै घट नाम निवास। नाम किथे निवास होवे, नाम तो सुन्या बंदा खाली है, बस भोग भोगण लग्या होया माया दे काम क्रोध दे। भोगै भोग अनेक, बिन नाम है सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुन्या। वाहिगुरू की भगती तो बिना सतगुरु कहंदे बंदा नित मरदा है, रुन्या दुखी हुंदा है, नित दुखदा है, नित भोग दुख भोगदा है। सारे भोग भोगण तो बाद, सब चीज़ां हासिल करन तो बाद भी सुख थोड़ी ना मिलदा, किते नज़र आउंदा है। सतगुरु कहंदे दुखी ही नज़र आउंदा है, क्रुजदा खपिया होया, सब कुछ कर करा के भी दुखी है। कपड़ भोग सुगंध तन मरदन मालना। सतगुरु कहंदे बंदे ने बड़े वधिया वधिया महंगे कपड़ियां का भोग किया। कपड़ भोग, बड़े महंगे कपड़े, लोग कपड़ियां लीनियां उत्ते बड़ा पैसा खर्चते हैं अजकल। कपड़ भोग सुगंध, फिर सिर्फ कपड़ियां ते खर्चा नहीं होंदा, फिर कपड़ियां दे नाल नाल परफ्यूम भी चाहिए, ड्यू भी चाहिए, कोई कि वधिया सुगंधी आवे, शरीर विचों खुशबू आवे, कपड़ियां विचों खुशबू आवे, इसलिए सुगंधियां का इस्तेमाल करदा है।
वधिया महंगे कपड़े सुगंधियां अपने तन दे उत्ते मलदा है। मर्दन मालना तन दे उत्ते मलदा है। कई तरह के अजकल तो बड़ा कुछ ना, बड़ी कई तरह के महंगे महंगे बॉडी लोशन बड़ा कुछ है कि जिहदे नाल शरीर सोहना लगे, शरीर खूबसूरत नज़र आवे। ख्याल रखना कि कपड़ियां करके शरीर खूबसूरत नज़र आउंदा है, होर कुछ भी नहीं है, होर कुछ भी नहीं। तुसीं आ जिहड़े जंगलों में रहिंदे ने, एमेजोन के जंगलों में जां भारत विच भी कई ऐसियां थां है जिथे अज भी जंगल में लोग रहिंदे ने, उत्थे स्त्री पुरुष बिना कपड़ियां तो ही रह रहे हैं। वो इक्को जिहे ने, उन्होंने कोई फर्क नहीं है। कौन सोहना है तो कौन सोहना नहीं है, इस गल का कोई फर्क ही नहीं, सब इक्को जिहे ने। एमेजोन के जंगल में रहने वाले जिहड़े आदि मनुख ने, वो भी ऐसे ही ने। इसलिए कपड़ियां करके ही है सारी दौड़ भज, होर कुछ भी नहीं है। सतगुरु कहते इन्हां चीज़ां नूं क्यों बंदा कर रहा कि मैं सोहना दिसां, बस मैं सोहना दिखाई देवां, खूबसूरत नज़र आवां, बस होर कुछ भी नहीं है। तो सतगुरु कहते ये गल चेते रखी, बिन सिमरन तन शार सर पर चालना। इस शरीर नूं जिन्ना मर्जी महंगे कपड़े नाल सोहना बना लै, जिन्ना मर्जी महंगा कपड़ा पहन लै, जिन्नियां मर्जी सुगंधियां ला लै, जिन्ना मर्जी अपने तन नूं सवार लै, इस शरीर ने एक दिन मर ही जाना है। इस शरीर ने एक दिन खप जाना है, खत्म हो जाना है। बिन सिमरन तन शार, वाहिगुरू दे सिमरन तो बिना ये शरीर शार है, मिट्टी है, इहदी कीमत नहीं पैंदी। इहदी कीमत वाहिगुरू दे सिमरन नाल पैंदी है, उहदी बंदगी नाल इस शरीर दा मुੱਲ पैंदा है। साडे महंगे कपड़ियां दा मुੱਲ उस वाहिगुरू दे सिमरन नाल पैंदा है, उस तो बिना नहीं। इस करके सतगुरु कहते भाई इसने सर पर चालना, सर पर मतलब कि जरूर इस शरीर ने चलिया ही जाना है, खत्म हो ही जाना है। ये पक्की गल है कि ये शरीर बचेगा नहीं, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। महा बिखम संसार विरले पेख्या। सतगुरु कहते ये संसार जिहड़ा है ना, इनू पार लंघना बड़ा बिखम है, पर इस गल नूं किसी विरले बंदे ने देखा, सब ने नहीं देखा। महा बिखम संसार विरले पेख्या, कोई विरला टामा देखदा है हमेशा ही। सतगुरु ने कहा ना, गुरु नानक साहब ने कि हैन विरले ना ही घने, क्योंकि विरला बंदा हुंदा है। सब थोड़ी ना जानते ने, सब थोड़ी सच नूं पकड़ पाते हैं, सब दे कोल वो अख नहीं हुंदी, सब दे कोल वो समर्था नहीं हुंदी। सब लोग ज़्यादातर वो इक्को जी सोच वाले ही हुंदे ने, ज़्यादातर लोग इक्को जी सोच वाले हुंदे ने, क्योंकि सानू लगता है कि जो मैं सोच रहा वहाँ दूसरा थोड़ी वैसा सोचता होना है। जो ख्याल मेरे मन में आया जरूरी थोड़ी कि दूसरे के ख्याल उही ख्याल दूसरे के मन में भी आया होवे, पर ऐसा नहीं हुंदा। मैं एक कहानी सुनी है कि एक राजा, उन्हें कहा कि मैं कुछ वखरा करना चाहना जिहड़ा अज तक किसी राजे ने कीता ना होवे। हमेशा ही मंत्रियां संतरियां नूं राजियां नूं इहो जी कुछ ना कुछ वखरी गल करन दी होड़ लगी रहिंदी है कि मैं कुछ वखरा करा, कुछ ऐसा जिहड़ा पहलां कदे कीता ना गया होवे, मैनूं दसो कि की करिया जावे। उन्हें अपने कैबिनेट नूं सद्दिया, सारी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अपने वजीर सारे जिन्हां जिहड़े जिहड़े वख वख डिपार्टमेंट नाल संबंध ने सारे बुला लै कि दसो की कीता जावे। किसी ने कोई सलाह दी, किसी ने कहा कोई खूह लवा दो पिंडां विच, किसी ने कहा कुछ कर दो, किसी ने कहा डिस्पेंसरियां खोल दो, आ कर दो, ओ कर दो। एक वजीर ने कहा कि राजन है तो थोड़ा औखा,
पर जे आपां कोई ऐसा तलाब बनाइए कि जिस तलाब विच पानी ना होवे, दुध होवे, राजे ने सुनिया तो उहदियां अखां चमक उठियां कि हाँ, पानी दे तलाब तो बहुत हुंदे ने, दुध दा तलाब थोड़ी हुंदा कोई। ये वखरी दी गल लगदी है, ये थोड़ा डिफरेंट है। सरकारां ऐसा ही करदियां, जिवें अजकल भी करदे ने कि कुछ वखरा करो, कि 4 साल फौज विच भर्ती, मुड़ के आनी जो मर्जी करो जी, वखरा करो, कुछ अलग करो, डिफरेंट, दूसरिਆਂ नालों अलग। उन्हें क्या ऐसा ही करो कि बड़ा सारा तालाब बनाओ। फिर मंत्रियों ने कहा जी तालाब तो बन जाएगा, पर इन्ना दुध कित्थों आएगा, इन्नी मात्रा विच दुध कित्थों आवेगा। फिर उस वजीर नूं पुछया गया कि तुसीं तलाब की सलाह तो दी, पर हुण दुध की भी सलाह दिओ कि दुध कित्थों आवे। तो उन्हें कहा जी इहदा किहड़ा औखा काम है, आपां पूरे देश विच ढिंडोरा पिटवा देना कि हर आदमी एक एक गिलास अपने घर तो दुध का उस तलाब विच पावे, साडी गल टेंशन खत्म। राजे ने कहा कि यह तो बंदा ही बड़ा वधिया है, तो सलाह ही बड़ी नेक दिंदा है कि हर आदमी एक एक गिलास दुध का जो पाएगा तो आपे तलाब बन जाना है, दुध का तलाब। अनाउंसमेंटां करा दित्तियां गईयां, एडवरटाइजमेंट हो गई, ढिंडोरे पटवा दिते गए पूरे देश विच। जदों तलाब की खुदाई हो गई, सारा काम हो गया, तो हुण उहदे विच दुध भरन की गल है। आख्या गया कि कल तक एक दिन का समा दे दिता गया कि फलाने दिन सारे लोग दुध पा देण इस विच एक एक गिलास। हुण लोग घर ही बैठे अपनिया विचारां करते हैं कि की कीता जावे, कि दुध एक एक गिलास उहदे विच दुध पाउणा है, सारियां ने अपने अपने घरों एक एक बंदे ने, तां लोग बैठे विचारां करते हैं। लोग भी साडे वर्गे ने, उन्होंने कहा कि दूसरे दुध पाउणगे, आपां एक गिलास पानी पा देंगे। किसी नूं की पता लगना कि किहने दुध पाया तो किहने पानी पाया। कहंदे ने रात बहुते जिहड़े इहो जी सोच वाले सन, वो रातों रात उस तलाब दे विच दुध पाउण वास्ते पहुँच गए। जदों सवेर होई तो वह सारा तलाब भर गया। जदों देखिया तो सब हैरान कि वह तो पानी ना भरिया पिया, वो तलाब तो पानी ना भरिया। बड़े हैरान होए लोग, क्योंकि सारियां ने यही सोचा कि किसी नूं की पता लगना कि दुध पाया कि पानी पाया, लोग पानी ही पाउंदे रहे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो ख्याल साडे मन विच आया वो दूसरिਆਂ दे मन विच ना आया होवे। इसलिए असीं जिहो जिहे माहौल विच रहिंदे आ, जिहो जिहे इलाके विच देश विच रहिंदे आ, उत्थों दे लोकां दी सोच इक्को जिही हुंदी है, ख्याल उहो जिहे ही आउंदे ने। साडे देश विच ज़्यादा धर्म दीयां गल्लां हुंदियां, इस करके थोड़े धार्मिक ख्याल आउंदे ने। यूरोप वाले पासे जां होर देशां विच जिथे होर तरह की संस्कृति है, उत्थों के लोगों के उहो जिहे ख्याल विचार हुंदे ने। रशिया वाले पासे जां जापान वाले जिधर रब नूं घट मनते हैं लोग, उधर उन्हां दे ख्याल उहो जिहे हुंदे ने। इसलिए हर थां लोगों की सोच लगभग इक्को जिही हुंदी है। सतगुरु कहंदे सच नूं तां कोई विरला जाणदा है, कोई विरला, कोई अलग वखरा। सतगुरु कहंदे महा बिखम संसार विरले पेख्या। किसी विरले बंदे ने देखा कि यह संसार सागर बड़ा बिखम है, बड़ा औखा है। जिहड़े इहदे विच उलझ गए उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्होंने तो लगता है कि इस दुनिया 'च खाण पीण ही आए हैं। उन्होंने तो लगता है कि नचना गाउणा बस यही जिंदगी है। वो बस इसे विच उलझे हुए ने। वो इसे विच ख्याल रखना, नचना गाउणा खाना पीना भी बहुती देर नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी नच के नहीं सरना। कि जे कोई आखे जी नचना ही जिंदगी है, तो की कोई आदमी सारी जिंदगी नचदा तुहानूं दिखाई दिंदा है? कि सारी जिंदगी नचदा ही रहा होवे?
ऐसा कोई नहीं है कि खाना पीना ही जिंदगी है तो सारी जिंदगी बंदा खांदा पींदा ही रहा होवे, होर कुछ कीता ही नहीं। खाना पीना किहड़ा मुफ्त आ जाता, उहदे वास्ते तो काम भी करना पैना। इसलिए ये सिर्फ गल्लां बणियां होईयां ने। जीवन की लीला नूं, जीवन की खेड नूं किसी विरले ने जाणिया, सब ने नहीं। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छुटन हर की सरन लेख नानक लिखिया। सतगुरु कहंदे ये लेख लिखिया कि जिहड़ा वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़दा है, गुरु दी शरण पैंदा है, उही छुटदा है, उही इस काम क्रोध दे जाल तो, माया दे जाल तो उहदा छुटकारा हुंदा है जिहड़ा उहदी शरण पैंदा है। सतगुरु रहमत करे आपां सब उहदी शरण जुड़ीए, उहदे चरनां नाल जुड़ीए, तां कि साडा भी माया तो छुटकारा हो जाए। होईयां भुल्लां लेखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जो भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।